you solve? Directly based on the formula. Okay. Good morning all. So yesterday I have given the theory of conditional probability with remarks. Okay. Few remarks given, and based on these remarks and the theory and formula, this exercise 13.1, as I asked you to solve the question number 1 and 2 and up to the 5, because these are directly based on the formula, you are able to solve this because there is no logic, only algebraic works is to be done. Directly you have to put in the formula 1 and 2. Question number 1 and 2 done. Question number 3, it is also directly based on the formula. Question 4, 5. So I am solving only one question out of this, question number 5 of exercise 13.1. Because 1 to 5 are similar, directly based on the formula. Still I am solving one, sometimes maybe asked in objective type question. If PA is given 6 by 11, it is given that PA 6 by 11 and PB 5 by 11. Find, and also it is given P of A and B is equal to 7 by 11. These things are given. We have to find the following things first. P A intersection B. Second part is P A by B. This is the conditional probability notation. A by B, probability of happening of A when B is occurred, and this is the probability of B when A is occurred. So these 5 things, 3 things we have to determine after when these conditions are, when these values are given, PA, TB, and PA. Solution. Since PA union B equal to PA plus PB minus PA intersection B by addition theorem on probability last year 11 class formula, it is given that 7 by 11, PA is given 6 by 11, PB is given 5 by 11, PA intersection B is to be determined. Just see what is the tough in this question. कुछ भी tough नहीं है, everything is easy. Directly we have to put the formula, values from the formula. What are given? Then 7 by 11, 6 by 11, 5 by 11 minus 7 by 11 will give 4 by 11. First part. Second part, we have to determine PA by B. The formula of PA by B is PA intersection B sorry, upon PB. The P intersection B is given. Now we have P intersection B 4 by 11 and PB is given 5 by 11. This is 4 by 5. Okay. And the third part is P B by A. The formula will be similar. P intersection A upon PA will be the sample space. That means A will be the sample space. Probability of A. It is 4 by 11 whole upon PA. PA what is given? P 6 by 11. So this is 2 by 3. So this is the question number 5, and it is very easy. So you can think about the first 4 questions are also very easy, just based on the formula. Now question number 6 and 7. Here we have to form the sample space and elements of the event in set form. So first take a screenshot. Let's take the screenshot. Visible? Any doubt? Done. Okay. Question number 6. Question number 6, exercise 13.1. A coin is tossed 3 times. As we read, a coin is tossed 3 times. I have number of outcomes are 8.
I am not writing all the 8 outcomes that all of you know, because from the 9th class onwards you are writing the 8 outcomes when 3 coins are tossed or 1 coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times, where E is defined as head on the third toss. So this E is the event head on third toss. For this, I will write the following members which are favorable to this event. Head on the third toss, third, T, H, H, T, T, H, H, T, H. You can see head is on the third toss. Is there any other? If you write all the 8 outcomes, suppose I'm writing all the 8 outcomes, it will be easy to get which are in the which elements of the sample space having the head on the third toss. Head, 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 tail, head, tail, head, then head, tail, 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 head, head, tail, 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 head, tail, 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 head. All are there. Eight outcomes. In these 8 outcomes, this is having last as head 2, 3, 4. Just see here it is written. ये सब आगे है देखो इसके अंदर. Now F. F is the event head on the first 2 tosses. Head on the first 2 tosses. Here we have to think at least something we have to think here, because in the question number 1 to 5 these were the directly based on the formula, but here we have to form the sample space and the favorable number of elements to the particular event. ये वर्क हम 9th 10th में भी करके आ चुके हैं, इतना तो समझ में आता है. मैं अभी तक में जो वर्क कर रहा हूँ वो 9th 10th 11th तक का ही है, 12th अभी यूज नहीं हुई है यहाँ तक. हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस. कौन कौन से केसेस जिसमें फर्स्ट 2 टॉसेस पर हेड है? 2 टॉसेस पर. थर्ड पर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट 2 पे दिखना चाहिए. फर्स्ट 2 पर ओनली दिस 2 केसेस, फर्स्ट 2 पे हेड हेड दिखना चाहिए बस. ओनली 2 केसेस. नाउ द क्वेश्चन इज 1 to 6. What we have to do? Toss 3 times. Determine E by F in the question number 6 to 9. Now PE by F, I can use the formula of number of elements of E intersection F divided by NF. Okay, so number of elements in E intersection F will be, ऐसे एलिमेंट बताओ जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं. ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? ओनली वन एलिमेंट H H H. और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1. और NE में कितने एलिमेंट्स हैं? 4. और F में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. So E intersection F will be 1 by 2. PE by F. Any doubt? Is there any doubt? मैंने आपसे कहा था ना, प्रोबेबिलिटी को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के 2 टाइप के फॉर्मूले हैं. वन इज व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन and other is when we are forming the sample space and favorable number of cases to the corresponding events related to that, associated to that sample space. तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं और सैंपल स्पेस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड इवेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स, उसके फेवरेबल इवेंट्स भी हम फाइंड कर पा रहे हैं. तो वो वाले कैसे है, इसलिए हमने ऐसा किया है. इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करके भी कर सकते हैं, बट जब नंबर ऑफ केसेस हमको मिल रहे हैं फेवरेबल तो हम क्यों करें. कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. जस्ट चेक द आंसर. नमन, इज इट करेक्ट? आंसर 1 by 2 PE by F.
Okay. Next, question number 7. Two coins or toss, one similar. 7, 8, and 9. I am solving question number 9 because 6, 7, and 8, 7 and 8 are similar. So you have to try. Question number 9. Mother, father, and son line up at random for a family picture. E मतलब है son on the one end. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? मदर फादर एंड सन है ना, मदर फादर एंड सन लाइन अप हो रहे हैं फैमिली पिक्चर के लिए, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? ऐसा होगा ना, मदर फादर सन, मदर सन फादर, देन फादर मदर सन, फादर सन मदर, देन सन फादर मदर, सन मदर फादर. और कोई बनेगा आउटकम्स? टोटल आउटकम्स यहाँ पर मदर है, फिर फादर है, फिर सन है, मदर है, सन है, फिर फादर है, बस ये दो ही बन सकते हैं इसमें, और तो कोई सिचुएशन नहीं आएगी. फिर ऐसे दो इसके साथ भी बनेंगे, फादर के लिए साथ भी, और ऐसे दो सन के साथ भी बनेंगे. सन फर्स्ट पोजीशन पे, फादर मदर फर्स्ट पोजीशन पे, फादर सन को चेंज कर दिया, फादर फर्स्ट पोजीशन पे, मदर सन को चेंज कर दिया, सन फर्स्ट पोजीशन पे, फादर एंड मदर की पोजीशन को चेंज कर दिया. इससे ज्यादा तो नहीं बन सकते, मुझे नहीं लगता. ठीक है, रिपीट वाले हट जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं कि सर एम 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 भी तो आएगा और एफ 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 भी तो आएगा और एस 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 भी आएगा, ऐसा मत लिख देना. टोटल 6. नाउ फर्स्ट इज सन ऑन द वन एंड. सन एक एंड पर है, तो बताओ ऐसे कौन कौन से केस है जिसमें सन एक एंड पर है? एक तो ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, और एक ये केस है. ऐसा तो बोला नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे एंड वर्ड यूज किया है. सो एम एफ एस, एफ एम एस एफ एम, एस एम एफ. Here it is possible to show the favorable number of cases. That's why I am forming in the form of set, showing in the form of set. Father in middle, F, father in middle. ये जो मैं वर्क कर रहा हूं ना, ये वर्क तो आपको 11th क्लास के नॉलेज से मिल जाएगा. फादर इन मिडिल, मिडिल में है फादर तो एम एफ एस, और कहां पर है फादर मिडिल में? एस एफ एम. बस दो ही कैसे. ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? दोनों में कॉमन, कि सन वन एंड पर हो और फादर मिडिल में हो. ऐसे कितने केसेस हैं? एम एफ एस और एस एफ एम, दोनों ही कॉमन मिल जाएंगे. ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, एम एफ एस और एस एफ एम. ये देखो, हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ. सो एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ. We have n intersection f. How many elements in here? 2. And how many elements in f? 2 equal to 1. Question number 9. Question number 9. Is it correct? 100% possibility है. Okay. Take the screenshot. Visible? Audible? Hello everyone. Is it visible or audible?
क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 9 आर वेरी इजी क्वेश्चंस. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी लेस चांसेस दैट दीज क्वेश्चंस may ask in board exam, but for competitive exam and objective questions may be asked. From question number 9 to 15, 9 to 14, I must say 9 to 14 are very important questions. और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इस साल मुझे जो लगता है आने जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 14 में से 10 एंड 13, 10 एंड 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट. जरूर करेंगे आप इन्हें. मैं अभी बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं मैं आपको. आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10. स्क्रीनशॉट. डन. A black and a red dice are rolled. Question number 10. A black die. This is the black die. Suppose this is black. Okay. 1, 2, 3. इसमें मैं से 1 dot, 2 dot, 3 dot, 4 dots, and so on. इस टाइप का एक है. One is black and other is red. One is black and other is red. 2 dice are rolled. कलर्ड है इनके. इस टाइप से. A black and a red die are rolled. Find the conditional probability. देखो वर्ड साफ लिख रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. 10th क्लास तक ये 11th क्लास तक वर्ड यूज नहीं होते थे. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. सम ग्रेटर देन 9 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. प्लीज डियर स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना, जिसको फाइंड करना हम उसको ए लेके चलेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर, है ना. शुरुआत में बोल दिया था मैंने, इसमें जो हमें फाइंड करना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो हम उसको ए लेंगे. इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी दिया हो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे. सो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9. अभी मैं इतना ही पढ़ रहा हूं, आगे बाद में लिखता हूं. पहले लिख लेता हूं. लेट ए इक्वल टू इवेंट that sum is greater than 9. This implies sum may be 10, 11, 12. इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता. तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, पहले 10 वाले लिखते हैं हम. स्टार्ट विद द 6, 4. एक को कम करते जाओ और एक को बढ़ाते जाओ. 5, 5. 6 से 5 हो गया, ये 4 से 5 हो गया, ये 5 से 4 हो जाएगा, ये 4, 5 से 6 हो जाएगा. बस इससे ज्यादा नहीं बना सकते आप. 3, 7 नहीं होता इस पर. दिस इज ए. इसके कितने एलिमेंट्स आए वो भी देख लो. 1, 2, 3. 3 लिख दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सॉरी अभी मैंने 10 के लिखे, 11 के भी लिखने थे. 5, 6, 6, 5 एंड 12, 6, 6. So number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये वाला वर्क 10th क्लास से करते आ रहे हैं आप. 10 सम वाले, 10 सम, 11 सम and 12 सम. How to find number of cases. Now given that the black die results in a 5, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. Given that black die result in a 5, मैं B क्या लिखता हूं, event that black die results as 5. ब्लैक डाई में 5 आता है रिजल्ट. इसका मतलब ब्लैक डाई हमारा फर्स्ट है. फर्स्ट पोजीशन पे मुझे 5 चाहिए, बाकी दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. ये मतलब है इसका. फर्स्ट पोजीशन मतलब ब्लैक की और सेकंड पोजीशन रेड की है, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमको 5 चाहिए, ऐसा इसने बोला. इवेंट दैट ब्लैक डाई, ये ब्लैक है. ये फर्स्ट वाली पोजीशन ब्लैक के लिए.
इसमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको? 2 4 6 6 एलिमेंट। कोई बात नहीं, दोनों में सेम ही आ रहे हैं। फर्स्ट पे हमको ब्लैक चाहिए, वो चाहिए। नेक्स्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखे, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? यस सर, मिल रहा है कुछ कॉमन। एक तो 5 6, बस 5 6। और कोई एलिमेंट कॉमन है? नो। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1 एलिमेंट, 5 6। हमें फाइंड करना है पी ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द सम इज ग्रेटर देन 9 व्हेन इट इज नोन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इज ए 5। कॉमन एलिमेंट्स 5 5, सॉरी, हाँ 5 5 ऑल्सो, वेरी गुड। 2 elements are there, 5 5 and 5 6. Okay, sorry. Then PA by B we can write N intersection B upon NB. So this is 2 by 6, 1 by 3. Is it correct? 1 by 3. First part. Any doubt? Is there any doubt? This is the way of writing in exam. Board exam में आपको steps तो लिखनी पड़ेंगी ना. As I told you, probability required lot of logic, but need to write only few steps, and these few steps must be correct, must be proper. ऐसा नहीं रफ वर्क कर लिया सर, हिसाब से लगा लो सर, हिसाब से नहीं लगता बोर्ड एग्जाम में ना। क्या रहे सर, भावनाओं को समझो आप, ये तो ऐसे तो किया है बस, ये तो मतलब आ तो गया आंसर, वो आंसर आ गया, वो आ गया, वो सब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी मेंस और इसमें जितनी भी उसमें करो, वहां पर आप डायरेक्ट करो ये सब चीजें, ऐसे रफ किया साइड में और आंसर लिख दिया। बट यहाँ तो स्टेप्स लिखनी है आपको और उसी के मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, प्लीज जस्ट सी, टेक द स्क्रीनशॉट, कीप इन योर रिकॉर्ड, मेक द नोट्स। B part is for you. B part you will try similar. Question number 11 मैं नहीं करूंगा because as I told you अभी directly based on the formula. Question number 12. Question number 12. Screenshot done. Arimesh, Mahak. Hello. Screenshot done. Okay. Question number 12. This is also important question. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. This same question was given in class 11th also. When we were teaching in class 11th, I used to say that all the teachers, those who are teaching 11th 12th class, because they know what they are teaching and it is going to be used in class 12th also. तुमको याद रहता है ना, हमें याद रहता है, आप बच्चों को थोड़ी याद रहता है. So we used to say, और all the maths teacher की देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी बताया है. बॉयज जो घर में जो फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, दोनों बॉय दोनों गर्ल, इस करके सिंपल स्पेस बनाना था वहां पर. 11th क्लास में आपको सिंपल स्पेस बनाना सिखाया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था. सो एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. एक फैमिली में 2 बच्चे हैं. व्हाट इज द कंडीशन, आगे बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं सिंपल स्पेस बनाता हूं. देखो सिंपल स्पेस इज पॉसिबल टू फॉर्म, दोनों बच्चों में पहला बच्चा पहला बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, और कैपिटल बी इज फॉर एल्डर एंड स्मॉल बी फॉर यंगर. ऐसा भी हो सकता है पहले लड़का है बाद में लड़की है इसलिए स्मॉल जी लिख दिया. इसका अपोजिट ये भी हो सकता है पहले लड़की है फिर बाद में भी लड़की है, गर्ल गर्ल, स्मॉल जी फॉर यंगर, कैपिटल जी फॉर एल्डर गर्ल, एंड दिस. और कोई कंडीशन नहीं होगी. 2 बार जी कैपिटल मत लिख देना, 2 बार भी कैपिटल नहीं होगा, है ना, क्योंकि बड़ा और छोटा होता है ना, इसलिए. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4. नाउ वी हैव टू कंसिडर वन इवेंट
What is the conditional probability that both are girls? Let A equal to event, ऐसे steps लिखनी होती है, event that both are girls, ऐसे assume किया हमने, both are girls, both girls हैं, तो इसके लिए कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? both are girls, GG, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएगा? 1. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है, both are girls given that the youngest is a girl. B event that youngest is a girl, youngest. मतलब छोटी लड़की है तब, तो छोटी लड़की वाले केसेस कौन कौन से हैं? एक तो बीजी है और एक जीजी है, इनमें दोनों में ये छोटी लड़की दिख रही है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। इसमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं मुझे? 2। मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूं, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? जीजी। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ओनली 1। नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड पी ए बाई बी। The PA by B formula is equal to N intersection B upon NB. How many elements in A intersection B? 1. And how many elements in B? 2. Is it correct? 1 by 2 is the answer. Question number 12. First part. 1 by 2. Second part you have to try. Take the screenshot. Done. अब आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, उसको हम कल और परसों में 2 दिनों में 3 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट 28 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लीव मीटिंग।